Hello, hi, namaste, salama. Welcome to Anuj Kumar IND. And now it's again a new show time in mathematics, which is quadratic equations. Last topic was compound angles. Hardly 1 2 lectures will be also taken in order to complete the questions. Okay, so now today is a new chapter, quadratic equations, the first lecture of the new year 2021, and without any wasting time, let's discuss what we all are going to today. First, we will be introducing you what are the quadratic equations, its roots, what is an expression, difference between equation and expression, and lots of stuff like that. Then we'll be talking about some condition for common roots. Okay, then the cases of common roots, the cases of roots basically, and I'll be telling you a very unique thing today, and like that we'll continue. And also there are a lot of questions today will that will be covering approximately more than 15 questions in a little bit theory, that you will also amazed that you are able to solve such a good quality of questions in a limited quantity of theory. Okay, so without wasting any time, let's start. And before starting, like, share and subscribe the channel. Okay, so 3 2 1, let's start. So, quadratic equations. So, let's start the first lecture of the new chapter of 2021. So, quadratic expression and equations. So, basically, what is an algebraic expression? Mind the term expression. Expression. Okay. So, what is it? It is defined as fx. Fx means function in terms of x. An xn plus an minus 1 plus xn minus 1 plus an minus 2 plus xn minus 2, then certain number of terms plus a naught is called polynomial, where the exponent of x are non-negative integers. Okay, let me explain you this. So basically, what is an expression? An expression which is defined in the terms of this, that an xn plus an minus 1 plus xn minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 plus dot dot dot, that means more terms like that plus a naught, right? So this n, the x that we are seeing here, the x, what is x? They are the non-negative integers. Mind the term non-negative. They are not negative and plus integers. Integers are both negative and positive, but they are only and only positive. Okay, suppose we write an equation like, suppose a, what is a are the coefficients. What is a are the coefficients of x, right? So suppose we write an equation ax cube, right? Cube. So n is equals to 3. Here also it will be 3 plus a 3 minus 1 2 x square plus n minus 1 n minus 2, that means 1 n 1, and like that. This is the expression. This is expression. And when you equate this expression to a certain number, suppose that number is equals to 0, as we have seen in many equations in class 9 10th in our previous classes, 0. Now this is known as equation. This is known as equation, right? And when it is not equated with any number, then it is expression. So basically from here you can test yourself, as when you can write here that when when the expression, or else you can write when the expression is equated to a certain number, when the expression is equated to a number, it is called equation. It is called equation. Okay.
This is the meaning of equation. Now moving forward, the an. What the an? An is known as the leading coefficients. As I have told you before also that an is that it's the first term, right? So we can call the first term as the leading coefficient, no problem. And a naught is the constant term, that this cycle will go on like this only, like an minus 2, then n minus 3, then n minus 4, then n minus 5, like that. So that all thing is coined in the single term a naught, and a naught is the constant or the absolute term. Okay, and when an is not equal to 0, what an, the an is not equal to 0, then the degree of the polynomial is n, and if an is equals to 1, then the polynomial is called monic polynomial. Means when you put that an is not equal to 0, okay, suppose it is n is equals to 1, so your leading coefficients becomes 1, and the power of x also becomes 1. Now this one is the degree of the polynomial. What is degree of the polynomial? Degree of the polynomial is known as the highest power or the highest exponent. Highest power or the highest exponent of the expression or the equation. Okay, of the expression or the equation. Okay, now moving forward, and when an is equals to 1, that means the leading coefficient, when it is equal to 1, then the polynomial is called monic polynomial. Suppose we have an equation as x plus 2. Now the leading coefficient is 1, so it is a monic polynomial. Monic polynomial. Okay, now moving forward, for n is equals to 2, the polynomial is called quadratic polynomial. The polynomial is called quadratic polynomial, and its standard appearance is fx is equals to y is equals to ax square plus bx plus c. Now this is all about the chapter. Now I mean that we have to study about this, the quadratic, in the whole chapter. Okay, this is the starting of the chapter. We are introducing you the term quadratic. Okay, so when n is equals to 2, that means n is equals to, that means the equation may appear, the equation will be its appearance will be like this: a is the leading coefficient, x square plus bx plus c, where the degree of the polynomial will be 2. This is the degree. Okay, this is the degree of the polynomial, and this is known as the quadratic polynomial. Okay, and here are the certain conditions, that the a should not equal to be 0, and a, b, c all belong to the real numbers. It's a common sense that if a will be equal to 0, then this whole term will be equal to 0, right? And this, if the whole term will be 0, then this left quantity will be a monic polynomial. And it will not be called as the quadratic polynomial. So the a should not equal to be 0, and a, b, c all belong to the R. It can be rational, irrational, integers, whole numbers, natural numbers, anything. Okay, and here it's also written, when an expression is equated to 0, it's called an equation. Okay, moving forward, now we are studying about the roots of the quadratic equations. So as we all know that we have studied in our previous, the 10th class, chapter number 3, that the roots of the polynomial are x is equals to minus b plus minus root under b square minus b square minus 4ac upon 2a. Now I know many of you may not remember the most important method, the completing the square, as last year it was reduced from the syllabus of class 10th boards. That's why many of the teachers didn't cover that part, the completing the square rule. But no problem, here we'll be teaching you the completing the square step by step, and we'll be proving this formula by using the completing the square. Okay, so let's jump to it, and it will broaden your concepts.
Okay, and the completing the square method is useful to maximize or the minimize the equations. Okay, you will see that we are using it a lot in many of the chapters, not only in quadratic equation only. In many of the chapters we'll be using the completing the square rule. Okay, so moving forward, so the story is all about this equation. So let's take this equation forward. So ax square plus bx plus c is equals to 0. Okay, so what we do in completing the square is that we take the coefficient of x out, so it appears like this: b upon ax plus c upon a, okay, is equals to 0. The a moves here to the RHS, so it becomes 0. So the equation appears as x square plus b by ax plus c by a. This was the first step of completing the square rule, that take out the coefficient of x square. Okay, now moving forward. Now the next step of completing the square is that make the whole square of x and half of the term of the make the square of the term of x square and half the term of second term, that's the b by a. So it will appear like this: x plus b upon 2 by a whole square. अंडरस्टूड? ये जो हमारे पास x है और b बाई ए एक्स स्क्वायर और b बाई ए एक्स को हमें क्या एक उसमें फॉर्म करना है होल स्क्वायर में, और जो हमारा b बाई ए वाला टर्म होगा हमें क्या उसका हाफ लेना है, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस b बाई ए एक्स. ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ हमें मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगा. ये क्या एक्स्ट्रा है, तो हमें क्या इसको माइनस करना है. बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0. ओके, ठीक है भैया, ठीक है, इसको रहने देते हैं, मिटाएंगे क्यों फालतू में. ये था हमारा सेकंड स्टेप कि जो फर्स्ट टू टर्म्स है उनका स्क्वायर बनाओ और जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है उसको क्या उसको यहाँ माइनस में लेके जाओ. ये है हमारा थर्ड स्टेप. ओके, ये नेगेटिव करना, ये है हमारा थर्ड स्टेप. ठीक है भैया, ठीक है, इतना काम कर लिया. अब ये दोनों जो टर्म्स है हमें इसको क्या RHS में लेके जाना है. लेट्स टेक इट टू RHS. इसको यहाँ से मिटाई देते हैं. लेट्स टेक इट टू RHS. मैं इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ. कंप्लीट स्क्वायर को ये 10th में सिखाई जाती है, पर कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं आपको. x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस ऑफ c बाई ए. ओके, अब ये जो हमारा यहाँ पे जो छोटा सा स्क्वायर है इसको ले जाएंगे RHS में, तो ये छोटा सा बड़ा बन जाएगा, मतलब साइज में ये बन जाएगा क्या, स्क्वायर रूट. तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू रूट अंडर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए. और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम स्क्वायर रूट LHS में फेंक देते हैं तो यहाँ पे हम डालते हैं प्लस माइनस. ठीक है, क्योंकि जो 4 है वो -2 का भी स्क्वायर है और वो 2 का भी स्क्वायर है. ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों. और इस कॉन्सेप्ट क्लास में आपको एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और शॉकिंग चीज़ बताऊंगा आपको, इसी स्लाइड पे बताऊंगा. ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या, अब आप यहाँ पे एक चीज़ दिख रहे होगे, हम एक LCM ले लेते हैं. क्या लेते हैं, LCM. लेट्स टेक द LCM हियर. द LCM विल बी, मैं इसको यहाँ का इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करने में लगे. x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस
4ac अपॉन 4a²। ओके, अब जो 4a² है उसका तो हम वो क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, क्योंकि 2a इंटू 2a होता है 4a²। तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस माइनस बी अपॉन 2a को RHS में लेके जाएं, प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। LCM is 2a as you can see, so we have got the root. Boom. Understand? So we have proved that it is the roots of x is minus b plus minus root under b² minus 4ac upon 2a। अब भैया आपने बोला था कि आपको शॉकिंग चीज़ बताओगे, तो शॉकिंग चीज़ ये है कि ये जो मेथड है हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने बहुत पहले फाइंड किया था, जिसका नाम है उन्होंने इसका नाम पता है क्या दिया था, बहुत ही अच्छा नाम दिया था। उसका नाम था, एक अलग इंक में लिख देता हूँ, श्री धाराचार्य मेथड। और फिर उसको यूरोपियंस लेके गए और फिर उन्होंने इसका नाम क्या लिखा है, उन्होंने इसका नाम रख दिया वीटास थ्योरम। वीटास थ्योरम। और बस बाकी कहानी अभी आपके सामने हमने कर ही दी है। आगे बढ़ते हैं। नाउ बहुत बेसिक चीज़ जो हमने 9th में 10th में पढ़ी थी कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, हम अगर क्वाड्रेटिक में बात कर रहे हैं तो जितना उसका पावर होता है वो उसके क्या रूट्स होते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो इसके 2 रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पर भी आप इसमें से एक रूट को अल्फ़ा बोल सकते हैं और एक रूट को बीटा बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है कि जो पॉलिनोमियल है उसके रूट्स को हम ऐसे लिखते हैं, 0 के ऊपर एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा। अगर यहाँ पे क्यूब होता, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे क्या गामा भी आ जाता, अगर 4 होता तो एक डेल्टा भी आ जाता, नो प्रॉब्लम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। और डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फ़ा माइनस बीटा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस में क्या होता है, जो नेगेटिव भी होता है वो पॉजिटिव में जाकर बदल जाता है, इज रूट डी। अब डी क्या होता है, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, और इसी का रूट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a। मतलब अगर नेगेटिव a भी हुआ तो इसमें जाके वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, पॉजिटिव a में। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको याद कर लीजिए। नाउ नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग। पहला केस 1, अगर इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स एंड रियल रूट्स ऑल्सो। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। ओके, तो जो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c के जो हमारे 2 रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा, ओके, और जो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट, जिससे को हम लोग क्या डिस्टिंक्ट बोलते हैं, रियल एंड यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। केस 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इफ d इज इक्वल्स टू 0 then the quadratic equation will have 2 real and coincident repeated roots. That means if equation which appears like this as ax² plus bx plus c is equals to 0, is equals to 0, one alpha is here, one beta is here, and alpha, if the d, that's the b² minus 4a, is equals to 0, then alpha and beta are same and real, of course. Okay, now अभी जो आपको बताऊंगा वो आपको यहाँ
प्रिंटेड में यहाँ मिल जाएगा, पर समझा देता हूँ मैं आपको एक बार, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन बन के आती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, जिसका रूट्स होता है अल्फा और बीटा, ठीक है। हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखते हैं। अल्फा बीटा कॉमन है, राइट, अल्फा बीटा कॉमन है, मतलब इक्वल है, ओके। तो अच्छा, इसको मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, राइट, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। मैंने इस चीज़ को ब्रेक किया तो मुझे ये मिला, मुझको ये मिला, आप देख पा रहे हो। और मैंने ये किसके लिए लिखा था, मैंने इस इक्वेशन के लिए लिखा था। तो आप क्या चीज़ समझ पा रहे हो, आर दे इक्वल, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी बाई ए, राइट। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या एक्सप्रेशन में ले रहे हैं, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, इस एक्सप्रेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। और हम उसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह बी अपॉन ए लिखूँ, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, चलो ये प्लस हो गया, फिर बी अपॉन ए है एक्स प्लस सी अपॉन ए, राइट। तो क्या ये और ये इक्वल हैं, नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, किसी एंगल से इक्वल नहीं है, किसी एंगल से इक्वल नहीं है। तो हमें क्या इसमें क्या मतलब उसके में चेंजेस करने होंगे। इसका एक ही चेंज हो सकता है क्या, कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूट्स अल्फा और बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूट्स अल्फा बीटा, और जिसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, उसके आगे क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब इसको आप ब्रेक करो, ब्रेक करके देखो, ए इंटू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये और ये इक्वेशन सेम है, एक्सप्रेशन सेम है, मगर ये और ये सेम नहीं था भैया ना। इसीलिए ये एक मेजर मिस्टेक जो की जाती है वो आज हमने उसको सुधार के देखा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं क्या, कि दोनों रूट सेम है, तो x मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल ही हो गया, बोथ रूट्स आर सेम, रूट्स आर सेम। तो मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और क्या मैं इसको स्क्वायर ऑफ अ लीनियर बोल सकता हूँ, स्क्वायर ऑफ अ लीनियर, स्क्वायर ऑफ अ लीनियर, राइट। x माइनस अल्फा एक लीनियर है, उसका स्क्वायर किया हमने, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो, अगर इसके d इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसका जो इक्वेशन वो किसके बराबर होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इट इज स्क्वायर ऑफ अ लीनियर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो स्क्वायर ऑफ अ लीनियर होता है वो कब होता है, तो आपको बताना है जब d इज इक्वल्स टू 0 हो तब स्क्वायर ऑफ अ लीनियर होता है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। और एक और चीज़ आपसे मैं पूछता हूँ, स्क्वायर ऑफ अ लीनियर के साथ रियल कोएफिशिएंट्स कब होंगे, स्क्वायर ऑफ अ लीनियर के साथ रियल कोएफिशिएंट्स कब होंगे, जब a विल बी ग्रेटर देन 0, जब a विल बी ग्रेटर देन 0। तो इसके साथ आप क्या मिलेगा, रियल कोएफिशिएंट्स, रियल कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स एंड स्क्वायर ऑफ अ लीनियर,
ऑफ अ लीनियर, राइट। तो आपको स्क्वायर ऑफ अ लीनियर के लिए क्या चाहिए? सो द कंडीशंस फॉर स्क्वायर ऑफ अ लीनियर क्या है? डी इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आपको कोएफिशिएंट्स रियल चाहिए तो उसके साथ आपको क्या, एक ग्रेटर देन जीरो भी होना चाहिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको और समझने के लिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम, फाइंड एम फॉर विच इट बिकम स्क्वायर ऑफ अ लीनियर, फाइंड एम फॉर विच इट बिकम स्क्वायर ऑफ अ लीनियर। तो इक्वेशन जो है हमारे पास, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम, फाइंड एम फॉर विच इट बिकम्स स्क्वायर ऑफ अ लीनियर। तो क्या हमें एम की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए क्या स्क्वायर ऑफ अ लीनियर हो जाए। तो इसके लिए क्या हमें डी इज इक्वल्स टू जीरो करना है, सबसे पहली कंडीशन। तो डी इसका निकाल लेते हैं। डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी एम स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो है, हमको पता है। तो एम स्क्वायर, ये सी की वैल्यू तो एम है, सी इज इक्वल्स टू एम, तो एम स्क्वायर माइनस फोर एम इज इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे कि एम की कुछ वैल्यू निकल के आती है, एम की वैल्यू निकल के आती है। एम की क्या वैल्यू निकल के आ रही है, जीरो और फोर। एम की क्या वैल्यू निकल के आ रही है, जीरो और फोर। ठीक है, ठीक है। तो अगर एम की वैल्यू जीरो है तो यानी अल्फा भी जीरो हुआ और बीटा भी जीरो हुआ। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि डी इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो और बीटा इज इक्वल्स टू जीरो है, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, एम की वैल्यू तो जीरो और फोर आ गई। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस एम की वैल्यू हमने क्या लिया, जीरो, इज इक्वल्स टू, ये क्या बन के आ जाएगा, ये सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बोलेगा भैया स्क्वायर ऑफ अ लीनियर तो बना ही नहीं, तो ध्यान से देखो, वन इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, वन इंटू एक्स का स्क्वायर। और अगर एम इज इक्वल्स टू फोर हुआ तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा एम इज इक्वल्स टू क्या है, फोर। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ये स्क्वायर ऑफ अ लीनियर कैसे बनेगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स प्लस टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस, if d is smaller than 0 then both roots of quadratic equation are imaginary and they will occur in conjugate pair। यहाँ पे मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आयोटा वो भी समझाऊंगा, वो इस क्वेश्चन में क्या काम आने वाला है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो जो दोनों रूट हैं दे आर इमेजिनरी। सबसे पहले है d इज स्मॉलर देन 0, ओके। हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, पहले मैं आपको आयोटा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आयोटा क्या होता है, आयोटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस वन, आयोटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस वन। ठीक है, अब मुझसे पूछे माइनस ऑफ रूट, रूट अंडर माइनस टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू आयोटा, क्या हो जाएगा, टू आयोटा। कोई मुझसे पूछे रूट अंडर माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा, थ्री आयोटा। ओके, थ्री नहीं सॉरी, रूट थ्री एंड रूट टू। क्यों, रूट टू इंटू माइनस ऑफ रूट वन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस ऑफ रूट टू, और इस माइनस को क्या बोलते हैं, आयोटा। तो क्या बन जाएगा, रूट टू आयोटा। ओके, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। ठीक है, और हमको बोल रहा है कि d जो है वो जीरो से छोटा है। ठीक है, d जो है जीरो से छोटा, तो ये कैसे बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, ये जो d है, d में से क्या माइनस बाहर निकाल लेंगे, माइनस बाहर निकालने का मतलब रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस, ये उल्टा हो जाएगा, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर, और बाहर हो जाएगा माइनस वन, बाहर हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू ए,
माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस ये रूट अंडर माइनस में बाहर आके बन जाएगा आयोटा बन जाएगा, बाहर आके आयोटा बन जाएगा, और ये अंदर क्या रह जाएगा 4ac। ये थोड़ा हौच पौच हो गया, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर माइनस में बाहर आके क्या बन जाएगा आयोटा, तो आयोटा इंटू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a डी स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या हो गया, डी नेगेटिव हो गया, ठीक है। और डी नेगेटिव का मतलब इसकी टर्म्स क्या उल्टी हो जाएंगी, जो प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, ये इसका ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a आयोटा। इसको हम बोल देते हैं p, इसको बोल देते हैं q। तो क्या बन जाता है p प्लस माइनस q आयोटा, ठीक है भाई लोग। जिसमें से p और q क्या होते हैं, p और q का क्या उनका, वो तो निर्दोष है बेचारे, तो क्या वो तो रियल ही रहेंगे, p और q तो रियल रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि b a b c क्या है, रियल है, a b c क्या है, रियल है, a b c क्या है, रियल है, ठीक है भैया, ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाता है, ये तो कॉन्जुगेट पेयर हो ही गया ना, समझ जाओ ना यार, इतना समझ जाओ, कॉन्जुगेट पेयर है, गेट पेयर। आगे बढ़ते हैं, एक और केस आ गया है, वन मोर इम्पोर्टेंट केस कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या है, जो a b c है वो रैशनल है और a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्यों होता है रैशनल, रैशनल को हम सिंबलाइज करते हैं क्यू से, ठीक है। तो केस है इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर है d, यानी अगर रूट अंडर 4 हो गया तो उसकी वैल्यू 2 हो गई, तो d क्या परफेक्ट स्क्वायर, तो बोथ रूट क्या होंगे रैशनल। लेकिन अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बोथ रूट क्या होंगे इरैशनल, और जो है वो कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, क्या हो जाएंगे इरैशनल और क्या कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे। ओके, प्रूफ ऑफ कॉन्जुगेशन बता ही दूं क्या, चलो बता देता हूँ, चलो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो मेरी टर्म है इसमें मैं अभी बादल छा रहा हूँ, ये जो इस पे जिस पे बादल छा रहे हैं, ये जो मेरी टर्म है ये क्या इरैशनल, इरैशनल, मेरी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी इरैशनल, क्योंकि जो मेरा d है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने माइनस बी अपॉन 2a को p ले लिया और ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 को q ले लिया, p प्लस माइनस रूट q, जहाँ p और q क्या है रैशनल्स, p एंड q आर रैशनल्स, वाई बिकॉज a b एंड c आर रैशनल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कॉन्जुगेट पेयर। ये जो था ना ये हो गया p प्लस रूट q और p माइनस रूट q, इनको ये बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं, इनके रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये तो अपने बच्चे में पढ़ रखी होती है कि अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कि हम जो किसी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है ये x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, जिसमें ये क्या होता है सम ऑफ रूट्स, और ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कोई दिक्कत ही नहीं है इस में, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स हुज वन रूट इज cos 36।
ए बी सी क्या दिया हुआ है, रैशनल, रैशनल, और एक रूट क्या, cos 36। अगर आपने भैया मेरे से कंपाउंड एंगल पढ़ा होगा, ऐसा और नहीं हो सकता मैंने आपको cos 36 की वैल्यू ना बताई हो। cos 36 की वैल्यू मैंने क्या बताई है आपको, √5 + 1/4। यार +1/4, ठीक है। ये कैसी चीज़ है, इर्रेशनल। मैंने आपको हिंट दिया, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी सॉल्व करो। तो हो गया भाइयों, मैंने आपको हिंट दिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बड़ी प्यार से, एक रूट पता है तो दूसरे का कॉन्जुगेट पेयर में होगा। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब, सो कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, 1 - √5/4, ठीक है। बनादार क्वाड्रेटिक क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी √5 + 1, एलसीएम होगा सेम, +1 - √5/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा, √5 + 1/4 इंटू 1 - √5/4। क्या इक्वेशन आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, अंदरूनी आत्मा से पता चल रहा है कि इक्वेशन ये आएगी। आगे बढ़ते हैं। मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल खतरनाक लाजवाब क्वेश्चन है ये। एडवांस में भी आ सकता, मेंस में तो पक्का आ सकता है क्वेश्चन। करो भाई इसको। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 2x + 5 = 0, alpha beta roots, and then form a quadratic equation whose roots are α³ + α² - α + 22 and β³ + 4 β² - 7 β + 35। बड़ी सी इक्वेशन है, कुछ समझ नहीं आया भैया, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। देखो, इसमें 2-3 तरह हैं सोचने के। पहला तुम सोच सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स के वे से जाएं, उस रास्ते से होकर जाएं, पर नहीं यार, बहुत लंबा हो जाएगा। जो अल्फ़ा की पावर है ना, अल्फ़ा की पावर, अगर तुम चलो सम ऑफ रूट्स में तो हो जाएगा,
सम ऑफ रूट्स में हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में जैसे ही आओगे ये पावर्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएंगी यार। क्या हो जाएंगे? पीरोबलम, पीरोबलम, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, या तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लो, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर दो। लेकिन यार ये सब केस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मान लो 2 और 3 आई अल्फ़ा बीटा, फिर तो हो जाएगा। या मान लो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 17 या 19 या 44 या 66 या बड़ी वैल्यूज़ आती तो फिर जाके तुम क्या फंसते, क्या होते, फंसते। तो मैं तुमको बताने वाला एक शानदार मेथड जिसको तुम अप्लाई करके क्वेश्चन चुटकी भर में सॉल्व कर सकते हो। तो चलो चुटकी भर का मेंटोस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटोस। हम जो पढ़ाएंगे ना आपको, एक बताएंगे लॉ ऑफ मजदूरी वाला मेथड, ठीक है। मैंने आपको जो बताया है ना वो लॉ ऑफ मजदूरी है, लॉ ऑफ मजदूरी, ये बहुत बड़ा लॉ है। और दूसरा है मेंटोस, हम आपको मेंटोस से बताएंगे दूसरा, मेंटोस। तो मेंटोस मेथड ये आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो देखिए, अगर आप एक चीज़ देखो, अगर ये x² माइनस 2x प्लस 5 है, ठीक है, अगर इसका अल्फ़ा रूट है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, α² प्लस 2α प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ भैया, बिल्कुल लिख सकते हो। α² प्लस 2α प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाली चीज़ को इससे डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे? ऐसे, α³ प्लस α² माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 22 डिवाइडेड बाय α² प्लस 2α, ओ हाँ, प्लस 2α प्लस 5। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका कोशेंट जो होगा, डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट आएगा वो होगा x प्लस 3 और रिमाइंडर होगा 7। क्या चीज़ समझ में आएगी? अब याद करो, बचपन में जब हम नन्हे मुन्ने थे तो हमने एक कुछ चीज़ पढ़ी थी कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद आया? कुछ याद आ रहा होगा। अब देखो, हम उसी से इसका आंसर निकाल देंगे। ये हमारा डिविडेंड, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, इतना आना चाहिए। तो कोशेंट रिमाइंडर है ये, तो लिखते हैं यहाँ पर डिविडेंड की जगह ये रही, इज इक्वल्स टू डिवाइजर α² प्लस 2α प्लस 5। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इनटू x प्लस 3 प्लस 7, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे आप देख लो, आपको आंसर मिल गया। x² प्लस 2α प्लस 5 की वैल्यू क्या है? 0। जहाँ 0 हुआ ये ख़त्म। क्या वैल्यू आई? 7 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, α³ प्लस α² प्लस α प्लस 22 की वैल्यू क्या हो गई? 7। ये मतलब इसका एक रूट हमें मिल गया। जो हमें इक्वेशन बनानी है उसका एक रूट क्या हमें मिल गया। और अगर इस x² माइनस 2x प्लस 5 का एक रूट बीटा भी है तो मैं इसको β² प्लस 2 बेटा नहीं, इसको वैसे बेटा बोलते हैं, पर यहाँ पे इंडिया में इसको क्या बीटा बोलते थे। बेटा कुछ और ही मतलब निकल जाता है। ठीक है, वही चीज़ करेंगे। β³ प्लस β² और 4β², ध्यान से, माइनस 7β प्लस 35 अपॉन β² प्लस 2β प्लस 5। क्वोशेंट क्या आ जाएगा? बीटा प्लस 6। तुम लोग सॉल्व करना है इसको। हाँ, रिमाइंडर 5 मैंने सॉल्व कर रखा है, तभी मैं खटाखट कर पा रहा हूँ। मैं प्रिपेयर करता हूँ पूरा आपको पढ़ाने से पहले। ठीक है,
आ गया। फिर से वही चीज़ करेंगे, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू बीटा प्लस 6 प्लस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 5 की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या ख़त्म, इसी क्या वैल्यू रह गई 5। यानी आपका जो अल्फ़ा था, जो आपका पहला रूट था, यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 22, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 7। और जो आपका दूसरा रूट था बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, उसका क्या आंसर आ गया 5। तो आपकी क्वेश्चन क्या बन जाएगी भाइयों बहनों, अल्फ़ा स्क्वायर 7 प्लस 5 माइनस 12x 7 इंटू 5 प्लस 35 इज़ योर फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओहो, मैंने 2 स्लाइड छोड़ी थी इसके लिए, खामा मैंने इसी में घुसा दिया, कोई बात नहीं। इफ p इंटू क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस q इंटू आर माइनस पी प्लस r इंटू पी माइनस क्यू हैज इक्वल रूट्स, देन प्रूव दैट 2 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर। क्या चीज़ समझ में आई, हमें प्रूफ करना है। देखो प्रूफ हमने 10th में भी किया है ना, उसमें हम दिख जाता है कि सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। देखो जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो जे में तो नहीं पूछ सकते, लेकिन बोर्ड्स में 2% चांस होते हैं पूछने के, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये हमको आना चाहिए। ओके, तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत खुफिया फॉर्मूला है, बताना मत किसी को। हाँ, मैंने अभी तो बताया नहीं है आपको, पर संभल के। तो बी स्क्वायर क्या है, क्यू इंटू आर माइनस पी का स्क्वायर माइनस ओ होल स्क्वायर पूरा आएगा। 4a क्या है, p इंटू क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस क्यू। ये लंबी चौड़ी सी इक्वेशन मैंने लिख दी है। क्या कर दी है, लिख दी है। अब मेरा काम है चीज़ों को आसान करना। मैंने क्या सोचा कि इसको बोल देता हूँ a, किसको बोल देता हूँ a इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू माइनस आर। इसको बोल देता हूँ b, किसको बोल देता हूँ b, r इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अगर मैं a प्लस बी निकालता हूँ ना, a प्लस बी क्या आ जाएगा, प्लस p इंटू क्यू माइनस आर प्लस r इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ये बन जाएगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर पी माइनस पी क्यू। ठीक है, यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है कि कुछ तो कट रहा है, ये कट गया, ये बन जाएगा पी क्यू माइनस, और कुछ तो गड़बड़ गया, पी क्यू आर प्लस आर पी माइनस क्यू, तो ये बन जाएगा पी क्यू माइनस आर क्यू। ये पी क्यू माइनस, ओ हुई थी ना गड़बड़, ये देखो यार, ये आर क्यू होगा या आर पी ही तो होगा, आर पी होगा। माइनस आर पी प्लस आर पी माइनस पी क्यू। अच्छा, यहाँ गड़बड़ की है मैंने, ये पी क्यू नहीं, ये आर क्यू होगा। हाँ ठीक है, सही जा रहा था, माइनस आर क्यू। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी क्यू माइनस क्यू आया बाहर, पी माइनस आर, हाँ पी माइनस आर। ठीक है, पी माइनस आर। अगर मैं इसके आगे नेगेटिव साइन ले आऊँ तो क्या, नेगेटिव मतलब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब ये माइनस बाहर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, माइनस क्यू और आर माइनस पी। कुछ मिल गया हमको शायद, माइनस ऑफ ए, और इसको ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी के,
तो माइनस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। चलो भैया आसान हो गया रास्ता। मतलब मैं इतना बड़ा जो ये मैं लमाचोल मतलब डमाडोल किया हुआ है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab। लेट्स ब्रेक इट डाउन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, आगे जीरो है, आगे जीरो है, इज इक्वल्स टू 0। तो इसको ब्रेक करते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं सॉरी, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? ओहो, यहाँ से हमको मिलता है ए इज इक्वल्स टू बी। ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी का मतलब ए जो था वो हमारा इक्वल था पी क्यू माइनस आर पी इज इक्वल्स टू आर पी माइनस आर क्यू। ठीक है, तो ये जो अल्टीमेटली बन जाएगा 2/q माइनस 1/p प्लस 1/r। आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17। ठीक है, अब ये क्या 3 प्लस रूट 5 है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा? 3 माइनस रूट 5। बना डाल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, इसको डिवाइड कर दो उससे, तो बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। वही चीज़ करनी है जो हमने उस वाले पिछले वाले क्वेश्चन में की थी, फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। तो क्वेश्चन सेकंड में सॉरी क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। वही जो हमने उस क्वेश्चन में किया था, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 प्लस 1, और ये तो इक्वल टू 0 है, ख़त्म, इसका वैल्यू क्या आ गया? 1। आगे बढ़ो। If the roots of quadratic equation x minus alpha into x minus beta is equals to 0, then prove that is c and d. Then prove a and b are the roots of quadratic equation x minus c x minus d plus k is equals to 0. Is equal to ये माइनस के यहाँ पे है माइनस के। ठीक है, ऐसे में क्या करना चाहिए? अल्फा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? c प्लस डी, c प्लस डी, इसको बनाओ, मतलब ये a है, ये पहला इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहली वाली ये बन जाएगी x माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए बी माइनस के। ठीक है, सी डी, सी प्लस डी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है, और c इंटू डी क्या बन जाएगा?
ए बी माइनस के, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी प्लस के। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के इसको जीरो। क्या मैं प्रूफ कर चुका हूँ? अगर मैं वो इक्वेशन उतारता हूँ एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, इसका सपोज मैं लेता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सी प्लस डी, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी डी प्लस के। सी डी प्लस के किसके इक्वल है, ए बी के, और सी प्लस डी किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। तो देयरफॉर ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। if m1 and m2 are the values of m for which the quadratic equation m minus 1x, अगली क्लास में करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं भी आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ सारे, या आज की वीडियो इतनी रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।